Today I will discuss the internal resistance and EMF of a cell. At first, I want to give some concept of the basic idea of the cell. Actually, cell is a device that is used to maintain the steady current in an electrical circuit. And I am taking the simple electrolytic cell. Suppose in there are a container, there is a container, and there is electrolyte, and there are two plates of different material. One is known as positive plate, and another is known as negative plate. By the chemical reaction, there is exchange of charge between the electrolyte and this plate, and this plate becomes positive and this plate becomes negative. And suppose the potential of plate, suppose this is A and this is B of plate A, with respect to electrolyte, is V1, and for the plate B, V2 minus V2. Then the potential difference between the plates is V1 minus V2, and it is V1 plus V2, and this potential difference of the plates of the cell is known as EMF, and I am giving the symbol for the EMF is capital E. This is the EMF of the cell. Actually, the name of the EMF, the full form of EMF is the electromotive force, and this name is misleading. Actually, ये लगता है कि कोई किसी टाइप का फोर्स है. तो ये एक हिस्टोरिकल रीजन है कि जिस समय ये कंसेप्ट नहीं था कि दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट. उस समय ये पता था कि कोई फोर्स है जो फोर्स ड्राइव कराता है इलेक्ट्रिक करंट को, इसलिए उस जमाने में इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा गया. बट इट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट इज नॉट ए फोर्स, इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस. And this potential difference is not maintained by the electric force. कोई ये इलेक्ट्रिक फोर्स मेंटेन नहीं किया, कोई अदर सोर्स जो केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस के कारण जो ड्राइविंग फोर्स हुआ है, वो इस प्लेट को पॉजिटिव बनाया है और इस फोर्स को नेगेटिव बनाया है. एंड द resistance means electrical resistance of the electrolyte is known as internal resistance. And generally
it is represented by a small r. So this small r is the electrical resistance of the electrolyte between the two plates. Between the two plates. Now I am taking a complete circuit using this cell. Suppose there is a resistance R and there is an electrolytic cell, and here the EMF of the cell means the potential difference between the plates when there is no current. One thing that is, when there is no current, then the potential difference. मैंने उस समय जो पहले कहा था उसमें करंट नहीं था, तो when there is no current, the EMF of the cell is E, means potential difference when between the plates when there is no current is E, and R is the internal resistance, means electrical resistance between the resistance of the electrolyte between the plates, between the electrodes. So this is the E and this is the R. Now suppose this point is A, or this plate, this plate is known as A and this is the B, and it is a symbol of the cell. The positive plate is represented by a longer line and negative plate is represented by a smaller line. So this is the cell, and electric current will flow from A to B in external circuit, and since for a steady current you know that I is dq by dt, and it is constant for a steady, and thus we can say that the dq is proportional to dq is proportional to dt, means सेम इंटरवल ऑफ टाइम में चार्ज सेम होगा, यानी जब चार्ज फ्लो होता है तो इसमें रास्ते में ना कोई सोर्स है ना कोई सिंक है, यानी कंटिन्यूअस चार्ज का फ्लो होना चाहिए। अब चार्ज का फ्लो ये पॉजिटिव से नेगेटिव तो हुआ, लेकिन सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, मीन्स नेगेटिव पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. सो इट रिक्वायर्स ए अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, and that energy is provided by the chemical energy inside the electrolytic cell. So EMF is the source of energy obtained from the other type of energy. ये other type of energy है. अब हम चूंकि ये कंटिन्यूअस फ्लो है तो एक एग्जाम्पल मैंने लेके चला, इसको थोड़ा सा हम एक कंसेप्ट बेसिस से चल रहे हैं जिसका यूज हम अपने पढ़ाई के टेक्निक में पढ़ाने के क्रम में बार बार यूज करेंगे. थोड़ा इस पे गौर करेंगे आप इस बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूं, और अगर ये कंफर्म आपका हुआ तो आगे किरचॉफ्स लॉ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो सपोज कर लीजिए कि इस पॉइंट पे इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज the potential energy at A of unit positive charge is equal to, यहाँ इसको याद होगा कि मैंने इसको V1 कर रखा था प्लस, और इसको मैंने माइनस V2 रखा था, याद होगा सेल के क्रम में रखा था.
तो अब हम जानते हैं कि V1 इज द पोटेंशियल, सो अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन दिस इज द एनर्जी of the unit positive charge. So this is the energy of the unit positive charge. So at this point you have the energy for unit positive charge is V1. Now I am starting the journey of the charge, and this charge will come at this point, and this line means zero resistance. जब सर्किट में ऐसे लाइन होता है तो इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस नहीं है, यानी उसको कोई एनर्जी यूज नहीं करना पड़ा चलने में, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, वो बिना किसी यूज ऑफ एनर्जी को यहाँ तक पहुँचा, यानी अभी भी उसके पास V1 एनर्जी है। अब इस V1 एनर्जी के बाद इसको रेसिस्टेंस के क्रॉस चलना पड़ा, तो सम एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम दिस रेसिस्टेंस, एंड यू नो दैट V is IR according to Ohm's law, and I is the electric current, R is the resistance, and this V is the potential drop, means potential will decrease by IR when the current will flow from a resistance. Now its potential means the energy of the unit positive charge. तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की एनर्जी IR से डिक्रीज कर दिया, तो मैंने इसमें IR कम किया। इसके बाद फिर आइए यहाँ तक में, फिर यहाँ से यहाँ तक में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि नो रेसिस्टेंस इज देयर। अब जब यहाँ तक पहुंचे तो यहाँ दो बात होगी, वन इज द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइट, एंड इलेक्ट्रोलाइट हैज सम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑल्सो, तो फिर उसमें यूज हुआ, वो यूज होगा I into R। दूसरी बात कि अदर सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ से यहाँ तक में पोटेंशियल को बढ़ा दिया है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, कितना से बढ़ाया है, E से, क्योंकि हमने V1 माइनस V2 इक्वल टू V1 प्लस V2, जिसको हमने EMF कहा था। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस E था, तो यहाँ से यहाँ तक आने में दूसरे सोर्स जो उसकी एनर्जी को दिया है, आपको केमिकल सोर्स जो दिया है वो E दिया है, तो देन प्लस E, एंड अगेन आई हैव कम टू दिस पॉइंट, फिर मैंने इस पॉइंट पर पहुंच चुका हूँ A पर। तो A पर एनर्जी आपके पास क्या थी, पहले से V1 थी, यानी आपके पास अब क्या बचा, V1 ही बचा। तो हमने एक जर्नी स्टार्ट किया था, यहाँ से किया, हमारे पास ये स्टोर हाउस था, हमने इसमें से खर्च किया, फिर इसमें से खर्च किया, फिर हम लोग गेन किया, फिर जब गेन करने के बाद चूंकि उसी जगह पर पहुंच चुके हैं, इट इज ए पॉइंट फंक्शन, सो हमारी एनर्जी इतना ही होनी चाहिए, यानी V1 हो गया। अब ये विल कैंसिल, एंड दस यू कैन से दैट I R plus IR and E is equal to I R plus R, IR plus IR, and IR is the potential difference between the two ends, means the potential of A and this is same, कोई खर्च नहीं हुआ, यहाँ सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी A एंड B, हम यहाँ के बीच मतलब A एंड B के बीच में करते हैं, तो ये है V, सपोज करते हैं लेट V इक्वल टू IR एंड प्लस IR, सो E minus B is equal to IR, and this R is equal to E minus B by R. One thing that is the E minus B is positive, मतलब E से कम होगा V। अब एक बात हम थोड़ा सा हम अपने कंसेप्ट को एक बार फिर से आपको चेक कराते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक ओम्स लॉ से निकाले कि कितना हो गया, IR हो गया। थोड़ा सा हम यहाँ रफ में दिखाते हैं आपको, आई एम गिविंग दिस स्पेस। चलिए A और B के बीच में देखते हैं कितना पोटेंशियल है। यहाँ इसके पास क्या था, अभी V1 था, इलेक्ट्रिक करंट चूंकि इस डायरेक्शन में हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर आने में इसको खर्च हो गया होगा,
कुछ एनर्जी चलने में, लेकिन यहाँ ज़्यादा होगा तो कितना ज़्यादा होगा, आई आर ज़्यादा रहा होगा, और जितनी डिफरेंस है उतनी कम हो गई होगी, कम हो गई, और हम पहुंच गए कहां पर, एक मिनट, यहां आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ का है, और इसमें से आई आर आपका एक्सपेंडिचर है, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस के लॉन्ग वर्क करने में इतना हो गया, दिस इज दी वी। तो इसके बीच में भी हम निकाल सकते हैं कि ये हमारा वी होगा। सो दिस इज दी आर एंड ई माइनस वी बाई आर। बाय दिस formula we can get the internal resistance of the cell, and one thing that is the when R is 0 means there is no internal resistance, then this term will be 0, so E minus V is 0, so E is equal to V। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सेल के टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही EMF का लाएगा when there is no internal resistance। And second is that when I is 0, then E minus V is 0, so E is equal to V। Again हम ये कह सकते हैं कि the potential difference will be same as the EMF when there is no any electric current, means the cell is open, यानी हम कहें the EMF will be PD when there is infinite resistance, that is R is equal to infinity, that is open। तो EMF और PD सेम होगा जब रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो या सर्किट ओपन हो। और दूसरा केस है कि जब अगर इंटरनल रेसिस्टेंस ही नहीं है, जो EMF होगा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। So this is the concept of the internal resistance and EMF।